short notice ke skut tene testing bana nge ngati kargili nangpa mimangs especially ngata yuli khak kan general council members sangmang thukje chejwit ji khong sangma sanga I lak sorki I kursika ngayang lan bokchik hos bors tene nyampo dangdringi ngata tusi development la staste especially recently ngata shakar chiktan na shargul bulagi ngata muslim bahivini se salkani video snangena boste spera chiknishik ngas as a president of Kargil Buddhist ika borchisi borchis po khachan surak ringa sangma sangla I clear chen ki sham district char goset ya march to lay district zirkhan po dring soma bingkhani sprek menle ne low mangpo especially 1979 la Kargili district dhanena tharla daksa chupa Kargil Buddhist leaders tenang nyampo Kargili nangpa mimang sangme I sondujin pin ki Kargili samchik ngata gobno nutte kana tharchesi lajuga mana ngata lam chik duk kaw khirina ngata separate district thopna ngata chi sangma tharche duk jikam tene 1992 nanga honorable prime minister government of India ngata ju memorandum salte duk nyampo ngata te memorandum ngaji proof ngija gozna mire pasalang salen tene te salte tene ngati samchik kalas bardon khonga juste khonga chokna ana letter lipse duk ki chief minister of India Jammu Kashmir la Chief Minister of Jammu Kashmir chokna ngata tetanasi minister kambarali skumdunang letter salte duk ki khonge de kalas bardon tetana kalas bardon ajir dun khurte ngata mimang de dun la song duk kaw kherna gompa in min sarayan min roshak se jaga in min anti conversion line min जो भी ना proper percentage थोप गोसेन या delimitation sam singa chika mios fasonsina don proper cha gosen ten cha mana laju ka ngaja le march jo sal jeste te point dun khurte ngaji iskani lejunis sondus jatti duk tene te singna 1995 inanga tene lo ngis thalta tene mana pura hindustan gangpe nanga I record no ki lo ngis dharna duk chesi tene de dharna dukhani ngata paper cutting in dongi samay ka zix nang zix no tene ngata paper cutting sam shiduk tene isangma proof no te tanang zerte duk yangi jadi ka zix te duk march to lezre LBS 6 kagel march to leze there is only matsam shik paper cutting na te samay nanga layers ta se cha gosen chez bna ngaji I genuine demand un daksa chupa kargila madub jeste tene SB Chauhan skumdun honorable tendency union minister government of India no khwa ngate memorandum pultiduk tene 1979 nanga Jammu Kashmir chief minister layang khwa especially ngati dina mi sangma thuk se te darnes kola chi sangma songste lajuga mana chun sperachi ka ngata sere Kargila kamrangi se sere tang sete darna othenchi si nobachi ka ngata leps duk chez bana meetings ngun in spero khirena stak chupa milepches lep na loksons ti Kargila action messages bijestil tene taksanga ta ko ngaji chairman coordination committees ngija use ki ngata election Ladakh Autonomous Hill Development Council election first election pula boycott chisumli ka ngije dikana paper cutting ma mangpo paper cutting ayot ka na ngata genuine demand in min ki proper delimitation ngata sartax proper mecha chespo yana nangpe representative dring chupang malepya chinchal lang lepches matches भी जस्ती ते serious पेराव खुरते ngata se ikana sundu jati duale inga specially date nange po chia justen se na ngata especially muslim bayun la te dodo tikula dang de video la sta na te dodo tikki mi khachi gi jasti you communal rang tang duk jasti te men lenga ji izam lo mangpo na ngata sundu shin 2017 SS Boloria representative government of India ngata I khachuli problem po solve joje se phekong skot yakle tene te chanang ngati ngaji te chana yot khani leader unis tam shikala bardon te phone dunla borte nyampo additional new district ngaja district sumpek ladaga thop gosuk jete ngata jo phulte du tene 2018 nang yang chief minister representative thuga songste ngata third district ngaja george jeste ngaja jo phulte du te macha pe 2014 16 te changme nanga ngaja sham district great george te na ngaja tena shes jeste lo mangpona sangharsh juste ngaji sam shikalas bardon ten dunla borte tene ten changma asnanga borte especially culturally languagely relations tokna inang ngaja khongna zomat tena zomches duk jete te speron dunla borte tene ngata se juwa phulkhan jigin dring ekdam ngata I sham district chet ches po men jkan po khonga de clear chen sam lagal tene nyampo tang inokki ngatang mangluk sarkarut khani ngata yulji to ngatang sama sude chene no
suachi demand jik khonga zobs pe gudna khonga khamla thun pe gudna te borsche singa ta wangcha to nokle suchi bornang welcome inok nijes district sto tenok nijes district shakar chiktan na chargola masat pe sharka chiktan na chik chargola chik sal mol lekin ngaji chokna te yun ki ngajes demand tangkan po lo mangpo na 1979 na daksa super lo jipchu napchu na ngaje sangash chokan spregin drink somek men kan po ngija i media gutte ngija juk samrak tene yang tam chik maping minen tene एक एक चीज जो थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ यार अभी हमको यहाँ पे एक सोर्सेज से हमको ये भी पता चला कि जो अभी मुस्लिम जो कम्युनिटी के खासकर शक्कर चिकतन और शरगोल और उसमें भी जो शरगोल तहसील के जो कमिटी बना है उनका एक उन्होंने कोई जॉइंट एक्शन कमिटी बनाया है तो उन्होंने यहाँ तक भी इस तरह से भी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर उनका डिमांड पूरा नहीं होता है शक्कर चिकतन और शरगोल को जो है अलग से डिस्ट्रिक्ट ना मिला जाए या मिला जाए तो अगर उनको डिस्ट्रिक्ट कारगिल में रखा जाए अगर इस तरह से नहीं हुआ तो यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो सकता है कम्युनल क्लैश हो सकता है ऐसा करके वो जो है एक तरह से थ्रेटनिंग टाइप गवर्नमेंट को देने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेट है हर किसी को अपना डिमांड रखने का पूरा हक है डिमांड पूरा होता है नहीं होता अलग बात है लेकिन ये कहना कि अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा तो यहाँ पे कम्युनल राइट होगा तो ये एक तरह से उनका वही यही मेंटेलिटी दर्शाता है कि अगर ये नहीं होगा तो हम राइट करेंगे ये नहीं होगा तो हम वो करेंगे हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तरफ से एलबीए कारगिल की तरफ से और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया हम हमारी तरफ से ऐसा हम लोग न हमारी तरफ ऐसा कोई मंशा नहीं है हम कभी भी नहीं चाहते हैं कहीं भी कोई भी इसमें जो है कम्युनल क्लैश हो कम्युनल डिसहार्मोनी हो पीस को किसी भी तरह का वो हो अब इस तरह का अगर आप लोग स्टेटमेंट देते हो अगर हमें जो है इस तरह से डिमांड पूरा नहीं होगा तो ऐसा होगा तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऐसे लोगों को आप लोग जो है मेहरबानी करके इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों इस तरह से आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को अभी से ही आप लोग इस तरह से आप एक तरह से आप लोग थ्रेटनिंग देते हो यही चीज जो है पहले भी कई बार हो चुका है तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का किसी भी तरह से हमारे सोसाइटी में जो हमेशा हम लोग पीसफुली रहना चाहते हैं उसमें इस तरह के कोई हमारी तरफ से ना कोई ऐसा स्टेटमेंट है ना हमने कभी किसी के अगेंस्ट कोई कुछ बोला है हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डिमांड है जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है उसी को गवर्नमेंट के आगे रख रहे हैं और हमारे डिमांड रख रहे हैं बाकी हमारा कमिटी बना हुआ वो रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है फाइनल डिसीजन जो भी लेंगे तो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो संपल साहब को मुबारकबाद करते हैं फ्रेटर्निटी की जानिब से क्योंकि फ्रेटर्निटी से आपका काफ़ी पुराना ताल्लुक भी रहा है इसका भी रहा है सवाल साहब के साथ भी मेरा सवाल ये होगा सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके उसके बाद आपके काफ़ी कंप्लेंट्स थे स्टेट मदरली ट्रीटमेंट को लेके या सब डिवीजन स्टेटस या डिलिमिटेशन को लेके मेरा पहला सवाल यही होगा कि आप लोग ने भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी फ्रेम की है सिमिलरली शक्कर चिकतन शरगोल ने भी किए वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ पूरे ऑल सोशो पोलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि आपके साथ तमाम सोशो पोलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखा कि सब को कॉन्फिडेंस मिला के एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के उनका ये भी दावा है कि आप दावा कर रहे हो कि जितने भी विलेजेस जैसे सापी हो शरगोल हो फोकर हो या वाखा मुलबेग या खंगराल जो भी हो उसमें जो मुस्लिम जो विलेजेस पड़ रहा है उन पर भी काफ़ी असरात पड़ेंगे बाइक अगर शम के साथ मर्ज हुए तो आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे आके सबको कॉन्फिडेंस मिला के बड़ा एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक बड़ा डिसीजन लेने का आप लोगों ने सोचा नहीं सिर्फ इसमें शक्कर चिकन भी इन्वॉल्व हो और शरगोल के साथ साथ आपकी माइनॉरिटीज इन्वॉल्व बिल्कुल सही बात है देखिए पहली बात तो जैसे कि अभी हमारे संपल साहब ने बताया और मैंने भी बताया कि ये जो डिमांड है वो ऐसा नहीं है कि हमें एक दो दिन पहले या अभी डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट होने के बाद हमसे निकला ये बहुत ही पुराना डिमांड है हमारा और हमारा स्ट्रगल भी बहुत पुराना है 50-60 साल का हमारा रिकॉर्ड है हमारे पास 1984 से लेकर अभी तक हमारे जो भी हो जो चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो चाहे जो भी हो वो बहुत पुराना है तो इसमें हमारी तरफ से खासकर एलबीए कारगिल की तरफ से या बुद्धिस्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को बोलें कि भाई देखो ऐसा है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा बहुत पुराना डिमांड है लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि खासकर हमारा जो शक्कर चिकतन में हमारे मुस्लिम है और हमारे तहसील शरगोल में भी जो मुस्लिम है हम उनको कोई
हमारी तरफ से हम उनको कुछ नहीं बोल रहे। हमारा जितना भी आज तक यहाँ पे मेमोरेंडम गया है और जितना भी हमारा प्रॉब्लम हुआ है, वो हमारा कारगिल, डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक पॉलिटिक्स और डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक जो भी वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, उनके खिलाफ है। वो हमारे एलबीए करगिल के उसमें भी, रिकॉर्ड में भी है। करगिल गोनपा का अभी कुछ साल पहले कोई रिजोल्यूशन अभी निकला है, लेकिन वो भी एलबीए करगिल का स्ट्रगल है। वो डिसीजन भी डिस्ट्रिक्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वजह से हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमें प्रॉब्लम हुआ। चाहे डिलिमिटेशन का इशू है, उससे हमें शरगोल और शकर चिकतन के मुस्लिम भाइयों से कोई लेना देना नहीं। ये सारा डिसीजन जो है, ये एस्टवाइल जम्मू कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वजह से हुआ था। एसआरओ 450 के तहत जो है सब डिवीजन का किसको देना, नहीं देना, शरगोल को देना, नहीं देना, शकर चिकतन को देना, और ये जो है सख्त खानाल को नहीं देना, वो डिसीजन भी जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक पॉलिटिक्स और जम्मू कश्मीर, एस्टवाइल जम्मू कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के साथ हुआ है। तो हमारा जितना भी आज तक स्ट्रगल हुआ है, जितना भी हमने एजिटेशन किया है, जितना भी हमने ये डिमांड किया है, वो डिस्ट्रिक्ट कारगिल से अलग होने का हमने डिमांड किया है। हमारा शरगोल और शकर चिकतन में जो जितने भी हमारे भाई बहन रहते हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। दूसरी बात, अभी हमारे पास रिकॉर्ड है 1995 और 1997 कंटिन्यूसली। आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोगों को, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पता हो ना हो, तो आप लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। कंटिन्यूसली 2 साल, कंटिन्यूसली 1995, 96, 97 सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होते हुए भी, गर्मियों में कंटिन्यूस हमारे लोगों ने इस इला बुद्धिस्ट एलबीए करगिल के बुद्धिस्ट ने इसी मुलबेग के डकबंगले पे जो है हड़ताल किया था, स्ट्राइक। क्यों स्ट्राइक किया था? क्योंकि हमारे बहुत से लोग, मोर देन 60-70 हमारे लड़कियों को और कई बच्चों के माओं को जो है कन्वर्ट किया गया था। हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। लेकिन जब वो स्ट्राइक चला था 2 साल कंटिन्यूस, शकर चिकतन के हमारे मुस्लिम भाई बहन, इसी तहसील शरगोल के जो भाई बहन, किसी ने हमें नहीं पूछा कि भाई आप लोग क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, हम आपके साथ देंगे, हम सब लोग एक ही गांव के हैं, एक ही पड़ोस के रहने वाले हैं। आपके साथ ये नाइंसाफी हुआ, आपके साथ इतना दुख दर्द हुआ, इतना कुछ हुआ, हम आपके साथ हैं। किसी ने पूछा नहीं। उसी रोड से चलते थे, उसी सड़क से कारगिल से जाते थे, शकर चिकतन जाते थे, लेकिन किसी ने आज तक उस ट्रेंड में जो हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन सड़ रहे थे, मर रहे थे, किसी ने पूछा नहीं। और हमने कभी उनको नहीं बोला कि हम क्यों पूछ रहे, हम अपने बलबूते पे स्ट्रगल करते रहे। तो आज हम उनको पूछने का हमारा कोई वैसे भी कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात आप लोगों को मैं एक और बात बताता हूँ। 2006 में अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ था बहुत खरबू का, पूरा रिकॉर्ड है। अभी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आप जो हम बात कह रहे हैं, हमने रिटर्न में भी दिया है, मेमोरेंडम में भी, अगर आप चाहे तो इसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें। 2006 में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था बहुत खरबू मस्जिद में कुरान जलाने का, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। और उसकी वजह से कितना कम्युनल टेंशन हुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में। हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जितने भी मॉन्क्स रहते थे, जितने भी किराएदार रहते थे, जो वहां पे नौकरी करते थे, मुलाजिम, सबको दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के, मार मार के डिस्ट्रिक्ट कारगिल से बाहर निकाला था। वहां पे हमारे दुकानें थे, उसको तोड़ फोड़ के बाजार में दिया था। अचू संपेल का इसका खुद का कंप्यूटर का दुकान था, बीच बाजार में लाके सारा तोड़ फोड़ किया था। सबको आप लोगों को भी इसका पता है। और चिकतन में, शकर चिकतन सब डिवीजन जो है वहाँ पे बहुत खरबू में, शकर चिकतन के है कि डिस्ट्रिक्ट करगिल के हमें नहीं मालूम, लेकिन वहाँ के मुस्लिम आके बहुत खरबू के बुद्धिस्ट गांवों के घरों में पथराव किया था। उस टाइम हमारे स्पेंदर खान साहब जो अभी कमेटी के मेंबर भी है, डीसी करगिल था, उन्हीं के डीसी करगिल के चेयरमैनशिप में वहाँ पे वो बना था, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। उस टाइम हमारे शकर चिकतन के मुस्लिम और हमारे तहसील शरगोल के मुस्लिम, हमने उनसे कभी मदद का गुहार भी नहीं लगाया, और ना ही उस टाइम उन्होंने हमें मदद किया। तो अगर ऐसा है तो फिर आज की डेट में जो हमारा बहुत पुराना वो चल रहा है, तो उसमें हम एक प्लेटफॉर्म में आने का, ऐसा नहीं कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना, कई सालों से हमारा एक चल रहा है। तो बीच में फिर अभी हम उनसे ये कहें कि आप हमारे साथ दे दो, आज हम ये करेंगे, ऐसा कोई वो ही नहीं है, क्योंकि हमारा कई सालों का, 50-60 सालों का हमारा डिमांड चल रहा है। और मुझे नहीं मालूम शकर चिकतन वाले और तहसील शरगोल के जो अभी मुस्लिम कम्युनिटी के जो कमेटी बनाया है, उनका जो है सेपरेट शकर चिकतन और तहसील शरगोल को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का डिमांड हमें तो नहीं मालूम, हम ये भी नहीं कहेंगे, वो उनको खुद को पता होगा कि कब से वो लोग इस तरह का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से कभी भी हमने इस तरह का डिमांड नहीं रखा। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड था,
डिस्ट्रिक्ट कारगिल से अलग करके या तो हमें ले डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया जाए, नहीं अगर डालता है तो एक शाम रीजन और शाम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करके उसमें डाला जाए। उसी बेसिस पे आज हमें जो है शाम डिस्ट्रिक्ट मिला है। और हम आपको ये भी बताएं, आज जो शाम डिस्ट्रिक्ट आज मिला है शाम को, उसमें शाम डिस्ट्रिक्ट बनने में हमारे एलबीए कारगिल का स्ट्रगल जो है मेन फैक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा है कि इस शाम रीजन को भी बनाने की जरूरत है। और अभी हमारे मुस्लिम भाई जो है कम्युनल हार्मोनी की भी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये शाम डिस्ट्रिक्ट जो है कम्युनल हार्मोनी का पूरे लद्दाख में बेस्ट एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। अब सबको मालूम है इसमें ले के आधे गांव आने वाले हैं और करगिल के आधे गांव आने वाले हैं। तो इससे अच्छा कम्युनल हार्मोनी का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? अभी जो कमेटी के मेंबर अभी बोल रहे हैं कि भाई अगर इस तरह से शाम डिस्ट्रिक्ट में हमको जबरदस्ती डाला गया तो कम्युनल राइट हो जाएगा, क्या मतलब है इसका? हम मिलजुल के आज तक रहे हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। और शाम डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट, पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट एग्जांपल बनने वाला है कम्युनल हार्मोनी का। मिलजुल के दोनों डिस्ट्रिक्ट का, ले में 2 डिस्ट्रिक्ट, कारगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट और जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें दोनों ले डिस्ट्रिक्ट से भी गांव जुड़ने वाले हैं, कारगिल डिस्ट्रिक्ट से भी गांव जुड़ने वाले हैं। तो हम इसको एक कॉपरेशन की तरह, एक पीस की तरह, एक उसकी तरह से क्यों ना देखा जाए? क्यों ये कहें कि इसमें कम्युनल राइट होगा, कम्युनल क्लैश होगा? ये क्यों ना कहें कि शाम डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनल हार्मोनी एंड कोएग्जिस्टेंस। थैंक यू। साहब, आपने काफी कंप्लेंट दी करगिल के अगेंस्ट, तो इनमें सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा आपसे कि मेन इशू जो है आपको प्रॉब्लम करगिल के लीडर से आ रहे हैं आज तक या करगिल के लोगों से आ रहे हैं? और आपने बहुत सारे कंप्लेंट गिने, अनगिनत आपने कंप्लेंट गिने करगिल के अगेंस्ट। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चलो यूटी तो अभी नए नए आए हैं 5 साल में, इससे पहले आप लोगों ने 1995 से भी 99 से भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सपोर्ट? देखिए, एक बात तो हम ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, हम जब पहले भी खासकर एलबीए की तरफ से भी ये कई बार बोला गया है कि हमारा जो है आम लोगों से, कारगिल के, डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जितने भी आम हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं या हमारे शरगोल में है या शक्कर चिक्तान में, हमें आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम सबको पता है बेचारे आम लोगों को तो वैसे भी कुछ इन चीज़ों का जो है वो नहीं होता। हमारा जो है मेन फाइट जो है एलबीए कारगिल का और ये जो बुद्धिस्ट गांव का है, वो फाइट जो है वो है एस्ट रॉयल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ और डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक, चाहे वो एलएचडीसी का हो, चाहे वहाँ का जो भी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, इसीलिए क्योंकि ये सारे डिमांड्स और ये सारे हमारा स्ट्रगल है वो पॉलिटिकल इन नेचर है। वो सारा जो है हमारा, जो चाहे वो गोनपा का इशू भी ले लो, चाहे वो सराय का इशू ले लो, चाहे वो क्रमेशन ग्राउंड का इशू ले लो, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का इशू ले लो, चाहे जो मर्जी इशूज है वो सारा है। तो हमारा एस वाइल जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के साथ हमारा इस तरह से डिमांड था और वो डिमांड जो है उस टाइम जो एस वाइल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट था उसके साथ हमने उठाया भी है। तो एक बात हम ये बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा आम लोगों से हमारा बहुत, हम सबको पता है जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम जो है नॉर्मली हमेशा मिलजुल के रहा है, लेकिन जब पॉलिटिकली और अदरवाइज किसी तरह का अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफी होता है तो हर किसी को हक है अपना जो है बात आगे रखने का। डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो हमारे मुस्लिम है उनको भी हक है अगर उनके साथ कोई ज्यादती होता है तो उनको रखने का। तो आज हम जो है पुराने इतने सालों का जो डिमांड है उन सब का जो है सॉल्यूशन हम क्या देखते हैं कि हम सबको जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल से अलग करके शाम डिस्ट्रिक्ट में डाला जाए। और ये हमारा बहुत पुराना डिमांड है और हमें नहीं लगता इस डिमांड से किसी को भी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्वेश्चन होगा सर, हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट संपल साहब से हमारे तो बड़े कमिटीज बने हैं सिर्फ लद्दाख की, अगर हम बात करें, इंडिया में अगर बात करें तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक होकर अपेक्स बॉडी बना है करगिल में, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है। लद्दाख के बड़े बड़े मुद्दों को, छोटे छोटे इशू को लेकर वो लोग बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो कितना सपोर्ट रहेगा सर आपका करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी को एज ए न्यू प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का? जैसे कि आपको पहले पता है कि स्पेशली करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने क्लियरली ये अपोज किया था कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है हमारा रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसका एक रीज़न था क्योंकि हमने पहले जब डिवीजन स्टेटस के टाइम पे हमने संघर्ष किया था, उस टाइम भी एक ऐसे ही केडीए की माफिक एक ग्रुप बना था जिसमें ऑल पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप था। उस टाइम हमको इंश्योर किया था कि
आप लोगों का जो इशू है स्पेशली 3 इशू गोम्पा, सिरे और ये क्रमशन ग्राउंड का, उसका प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो भी डेवलपमेंट इशू होगा वो होगा उसके। तो वो होने के वो ये सब डिसाइड होने के बाद उस टाइम हमने शाना बाशाना पूरा उस टाइम का ग्रुप के साथ मिल के हमने ये डिवीजन स्टेटस के लिए संघर्ष किया था। तो वो करने के बाद जब लास्ट में हमने याद क्या देखा कि वो रिलीजियस 2 ग्रुप के बीच में अनबन की वजह से हमारा वो 3 पॉइंट सॉल्व करने वाला था, वो बिल्कुल ही नस्त-ओ-नाबूद हो गया, कहीं नज़र ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट दोबारा एक एक सिचुएशन ये है कि दोबारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म करने का टाइम आया, तो उस टाइम हमने क्लियर बोला था कि भई आप लोगों का कहने और खटनी में फ़र्क है। आप लोगों ने हमें एश्योर किया था कि ये 3 प्रॉब्लम जो है पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे, करगिल का कोई भी डेवलपमेंट इश्यू उसके बाद होगा बोल के हमको एश्योर किया था उस टाइम का इस्लामिक स्कूल हो, चाहे केएमटी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, सबने इंश्योर करने के बाद हमने यही बोला था कि जब तक ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हमने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ नहीं देना है। अभी चलो रिसेंटली गोम्पा का इश्यू भी सॉल्व हो गया है, सिरिया का भी हो गया है, कमीशन ग्राउंड के लिए भी ज़मीन दिया है। इसलिए हमने रिसेंटली हमारा वाइस प्रेसिडेंट मैडम कुंजिस को हमने केडीए को लेटर लिखा था कि हमारे तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव हाई पावर कमेटी का मेंबर है बोल के। तो जैसे-जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है करनी और कितनी में फ़र्क कम नज़र आ रहा है। फिर भी हमारा आपका सवाल का जवाब यही है कि उस टाइम साथ नहीं देने का ये रीज़न है। अभी हमारा जब तक हमारा जेन्युइन डिमांड पूरा होगा, हमारे स्पेशली हमको ये दिखाई दे रहा है कि अभी जो रिसेंटली एकदम सडनली शकर चिकटन और शरगुल ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट चाहिए बोलने वाले बात जो है, एकदम होने वाली चीज़ तो है नहीं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये हमें ये लग रहा है कि हमारा पुराना संघर्ष जो है, उसको कमज़ोर करने का एक चाल जैसा हमको लग रहा है। तो इसलिए हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि भई आप लोग अब हम सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हुए हैं, हमें हक है कि कोई भी डिमांड रखें। लेकिन दूसरों की टाँग खींचने की ज़रूरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा डिमांड जो है जेन्युइन है और प्रूफ़ के साथ आप लोगों को दिखाया गया है। पेपर कटिंग भी है, मेमोरेंडम भी है। हमने पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहा है, जो कि फुलफ़िल होने जा रहा है। तो वो ठीक है, हम वेलकम करते हैं। अगर हम शम डिस्ट्रिक्ट में गया, वो दोबारा फिर एक डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, तो उसमें हमें फ़ायदा हो, तो हम उस टाइम हम उस पे बात कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो हमारा बात बन रहा है, उसमें टंग नहीं अड़ानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हमारा ये ऑलरेडी मकसद है, अनाउंस हो चुका है। जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो हमारा डिमांड जो है जेन्युइन है। अभी क्लियर हमारे नुरबू साहब ने बोला, हमारा एक ही मकसद एक ही डिमांड है, हमको शाम के साथ मार्च करना है। सर तो एनडीए के वुमेन प्रेसिडेंट इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मौजूद है कि नहीं? हमारा नहीं, नहीं, मैडम है जी। एक बात आपको बताएँ, जो अभी ये एलवी कारगिल के अंडर जितने भी हैं, उसमें मैडम कुंजस डोलमा, जो वाइस प्रेज़िडेंट है डिस्ट्रिक्ट कारगिल एलवीए का, लेह में सेकंड वाइस प्रेज़िडेंट है। वो भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में वन ऑफ द को-चेयरमैन है। आज उन्होंने इस मीटिंग में आना भी था, लेकिन हमें ये पता लगा कि उनका अभी जो है कल वहाँ दिल्ली से आने के बाद वुमेन रिज़र्वेशन से लेकर कोई सेलिब्रेशन वहाँ कारगिल लेह में चल रहा है, तो उन्होंने वो आज इस मीटिंग में आ नहीं पाए। पिछले कई मीटिंग में मैडम कुंजस ने अटेंड भी किया है। एलबीए कारगिल का सभी ने यूनानिमसली उनको जो है हाई पावर कमेटी में भी एलबीए कारगिल ने ही उनको इलेक्ट वो करके भेजा हुआ। तो इस पूरे हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी और मर्जिंग विद शाम डिस्ट्रिक्ट में मैडम कुंजस जो है वन ऑफ द लीडिंग एंड की फैक्टर है, और उन्होंने सेपरेटली भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी एज वाइस प्रेसिडेंट एलबी कारगिल इन ले मेमोरेंडम दिया। अभी रिसेंटली दिल्ली में भी उन्होंने एमओएस होम से मिलकर और जहाँ-जहाँ भी मिलना हो, उनको यही सेम डिमांड जो आज हम कर रहे हैं, वो हर जगह जो है वो भी हमारा रिप्रेजेंट करके, इन सभी गाँवों को रिप्रेजेंट करके उन्होंने सबमिट किया है। सर इससे पहले ज्वाइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एलएसडीसी कारगिल ने किया था, उसमें आपके वुमेन प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, तब उनका स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। पहले जब कमेटी बैठा था, तब आपके वुमेन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आया था, हम शाम डिस्ट्रिक्ट के साथ जाना चाहते हैं। तब जब एलएसडीसी कारगिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाया, तब उनका स्टेटमेंट में चेंजेस देखा, उसकी क्या वजूहत है सर? इसका जो रियल जवाब है, तो वो तो वही दे सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मीटिंग भी उन्होंने अटेंड किया। उनके बिहाफ पे तो हम कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें पता है, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हर किसी को अपना डिमांड रखने का हक है, चाहे वो
संकू का डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो शक्कर चिकतन शरगोल का हो और हमारा शाम डिस्ट्रिक्ट का हो, वो हर किसी को जो है अपना डिमांड रखने का वो है। लेकिन वो मीटिंग अटेंड करना, उनका इस तरह का स्टेटमेंट देना, उसका असली जो है जवाब जो है मेरे ख्याल से मैडम खुद ही दे सकते हैं। आप ये सवाल अगर उनसे अब पूछे तो वो सवाल ठीक ये होता रहेगा। है पब्लिक में कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आखिर उसमें क्यों गया? फिर अगर आप शाम डिस्ट्रिक्ट के साथ जाना चाहते हो तो नहीं, सवाल ये है। उस मीटिंग अटेंड करने से और जो मैडम ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया उससे तो कहीं कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि हम शाम डिस्ट्रिक्ट में जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा तो कहीं स्टेटमेंट में भी नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वो मीटिंग जो है जहाँ तक हमें मालूम है वो सिर्फ बजट को लेकर और बजट को कई लेकर चीज़ों वो को प्रेस को कॉन्फ्रेंस था। डेमोक्रेशन और न्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए था। डिमार्केशन ऑफ न्यू सबका डिस्ट्रिक्ट शाम ये में नहीं था जाने कि जाने वाला मत ये और नहीं लिखा था वो ना नहीं उसमें। स्टेटमेंट नहीं था, वो तो स्टेटमेंट नहीं उस, था। उस, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा था कि डेमोक्रेशन अच्छे से होना चाहिए और पीस ऑफ हार्मनी का ख्याल ऑब्वियस सी रखना बात, वो चाहिए। तो हम भी कहते हैं ना, वो तो तब ऑब्वियस सी बात है। तब हम ये कहाँ से प्रूव होता है कि ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी हमारा डिमांड है, वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का और हमारा हक है। तो इन सब को अगर शाम डिस्ट्रिक्ट में मर्ज किया जाता है तो उसमें कम्युनल डिसहार्मनी कहाँ से क्रिएट होगा? आप खुद ही बताइए कैसे क्रिएट होगा, क्यों होगा? बाउंड्री को छेड़ने से डेमोक्रेशन क्यों? वो तो भारत सरकार का हक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट बनाते हो 5 डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम जब एक ही डिस्ट्रिक्ट था ले, फिर डिस्ट्रिक्ट बना करगिल 1979 में, उस टाइम भी डिमार्केशन हुआ था। जैसे भी हुआ हमें कहा, पूछा नहीं पूछा, कमिटी बनाया, जबरदस्ती बनाया, जैसे भी बनाया बनाया, वो गवर्नमेंट का हक है पावर को डिसेंट्रलाइज करना और एडमिनिस्ट्रेटिव करना। आज की डेट में सरकार ने 5 नए डिस्ट्रिक्ट दिया, तो उसी लिए अभी कमिटी हर जगह से पूछ रही है, हर स्टेक होल्डर से पूछ रही है कि और देख रही है, हर कुछ देख रहा है, लोगों का प्रॉब्लम सुन रहा है। सुनने के बाद कल को अगर डिमार्केशन होता है, कोई भी डिसीजन होता है, तो उसमें कम्युनल डिसहार्मोनी होने का या कम्युनल राइट होने का या क्लैश होने का उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। कल को जो जैसा भी डिसीजन होगा वो हम सब लोग करके लद्दाख को हम सब यूनाइटेड ले कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन रख के आगे ले जाना, यही हम कहते हैं ना। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि अगर ये करोगे वो करेगा तो ये होगा। तो अभी मैंने यही इसीलिए कहा कि शाम डिस्ट्रिक्ट अगर बनता है तो शाम डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स अमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कम्युनल हार्मनी इन होल लद्दाख। तो इसमें तो कम्युनल क्लैश और इसका तो कोई कोई सवाल ही नहीं है। आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते 8 दिसंबर मीटिंग को आप किस तरह देखते हो और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल 6 शेड्यूल के अगेंस्ट में होगा या फिर एलबीए का तो मेरे ख्याल से ये लद्दाख पोजीशन का तो हमारा हाई पावर कमेटी में हमारा रिप्रेजेंटेटिव मैडम कुंजस गया है। तो हमारा जब रिप्रेजेंटेटिव गया है तो वो 6 शेड्यूल हो, चाहे कोई भी सुरक्षा हो, चाहे ज़मीन को लेकर, चाहे हमारा जॉब को सिक्योरिटी को लेकर, उसके लिए तो वो हमारे लिए भी वो ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हमारा वहाँ करगिल रिप्रेजेंटेटिव अटेंड किया हाई पावर कमेटी। इसमें अगर कोई भी चीज़ होगा ना, जैसे मान लो अभी हमारा एलबीए कारगिल की तरफ से हमारा मैडम कुंजस जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ कारगिल की तरफ से रिप्रेजेंट करके हाई पावर कमेटी में गई है। और अगर कोई भी डिसीजन जो है वहाँ पे हाई पावर कमेटी में एपेक्स केडीए सभी लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें ये लगा कि कल को अगर कोई ऐसा डिसीजन हो रहा हो या होने वाला हो जिससे हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो करगिल में है उसको अगर कोई आहत होने वाला होगा, तो हम मैडम के साथ यहाँ पे मीटिंग करेंगे एलबीए करगिल का और उसी हिसाब से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अभी तक जो है जो भी टॉक चल रहा है वो बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में चल रहा है। ये हम सब पूरे लद्दाखियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खासकर ये जो रिक्रूटमेंट का जो इशू है वो हमारे लोगों का बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन हुआ है। और वुमेन रिजर्वेशन का भी एक डिसीजन आया है। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का भी डिसीजन वेलकमिंग डिसीजन है। उनको हम यहाँ के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं हम सब वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और एपेक्स और केडीए जो है पूरे लद्दाख के जितने भी इश्यूज है वो एक अच्छे माहौल में, पॉजिटिव माहौल में सब लोग मिलजुल कर जो है जो भी लद्दाख के हित में होगा वो सारे डिसीजन जो है हमें उम्मीद है वो सरकार लेगी। सर जिस तरह आपने एलबीए में रिशफल की, सिमिलरली एलबीए यूथ में भी आपने रिशफल की, क्योंकि दूसरे साथ दिखाई नहीं, एलबीए यूथ में कोई रिशफल नहीं, किसी चीज़ में नहीं है। सारे एग्जीक्यूटिव्स, जीसीएम्स, एलबीए यूथ विंग सभी सेम है। सिर्फ हमारा प्रेसिडेंट मुरूब साहब हेल्थ की वजह से उनको रिजाइन देना पड़ा। इस वजह से जो है सिर्फ नया प्रेसिडेंट जो है संफेद साहब अभी इलेक्ट हुआ और दोरजे नामग्याल साहब अभी वो किसी काम से चंगथंग गए हुए हैं तो वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन हमारा वाइस प्रेसिडेंट एलबीए यूथ का यहाँ पे प्रेजेंट है। सर जिस तरह आपने एक नंबरदार की भी जिक्र किया, साइन लिया है, वो यहाँ पे मौजूद है? शरगोल का हमारा एक नंबरदार था, उन्होंने हमारा एलबीए कारगिल में यहाँ पे मीटिंग में आके उन्होंने ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि
क्योंकि हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ये सारा कुछ हुआ था तो उन्होंने ये जिक्र किया कि इसमें बुद्धिस्ट का नंबरदार भी इन्वॉल्व है। जब हमने पता किया तो उसमें शरगोल का नंबरदार का साइन था। जब हमने शरगोल का नंबरदार को यहाँ पे एलबीए करगिल में ऑफिस में बुला के उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये साइन मेरे से बहुत कई दिनों पहले लिया था। उस टाइम इसका मतलब इन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा अभी नहीं है, यहाँ पे नहीं, वो किसी काम से कहीं गए, लेकिन इस तरह से हुआ। किया था तब मैं भी मौजूद था, हाले तो उन्होंने बोला था माइनॉरिटी का ये देखो आप ये शरगोल का है, इनसे आप स्टेटमेंट ले लो। शरगोल का पहले नंबर में भी था, उसको उससे जबरदस्ती लिया। उसको है ना बोला यहाँ पे हम एक डिस्ट्रिक्ट असम डिस्ट्रिक्ट के साथ जाना है बोल के उसने जबरदस्ती उससे सेल लिया। उसने बोला ये क्या है, उसने बोला हम शाम डिस्ट्रिक्ट के साथ जाना है, सब मिल के जाना है, इसमें सेंड करो। जबरदस्ती उससे सेल लिया। हाँ, और एक बात बताऊं, वो बेचारा जो नंबरदार है ना, वो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल गांव का है। उस बेचारे को बिल्कुल नहीं पता है उसमें क्या लिखा। उसको सिर्फ ये बताया गया है कि इस पे साइन करो, ये शाम डिस्ट्रिक्ट में मर्जिंग के लिए है, तो उस बेचारे ने साइन कर दिया। बाद में आके यहाँ पे एलबीए करगिल में स्टेटमेंट दिया था। हम इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते थे, हम इसके अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। जैसे मैंने शुरू में बताया, हम नहीं चाहते थे कि हमारे मुस्लिम और बुद्धिस्ट के बीच में किसी भी तरह का कोई क्लैश हो। जबकि ये जो कमिटी है, इन्होंने गलत तरीके से ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि उनके डिमांड के साथ बुद्धिस्ट भी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धिस्ट का आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि हमें शाम में नहीं जाना। एक घर हमारे पास साइन है, हमारा ये साइन है, हर घर का हेड का हमारे पास साइन है, हर बुद्धिस्ट लीडर का हमारे पास साइन है, हर गोबा मेंबर का हमारे साइन है, कुक्षो पचारिक से लेकर सापी तक। एक भी बुद्धिस्ट ऐसा लीडर या कोई इंडिविजुअल नहीं मिलेगा जो, तो कहने का मतलब है वो कि गलत तरीके से इस तरह की चीजें करने की कोशिश की है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम और बुद्धिस्ट के बीच में किसी तरह का भी क्लैश हो, इसीलिए हमने ना कंप्लेंट किया, ना हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जबकि वो शरगोल का नंबरदार खुद आके यहाँ पे बता गया कि मेरे से गलत तरीके से साइन लिया गया। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है।